So welcome to once again one more top 100 ZQADI questions. So we can find the PDF on the Telegram group MBA Scholars. So we have the first question of the video that on a circular track of radius of length, actually there is a circular track of length 18136 meter. There are two motorcyclists who are running in opposite direction simultaneously from the point O. Every time they meet, the A increases the speed by 1. Means A and B are the two runners. If I find the initial speed, that is of A is A and that of capital B is B. So when they meet first time, so A increases the speed by 1 and B decreases the speed by 1 and so on. So they stop when the speed of B is less than 2. So now it is saying that if they meet for the 10th time, means 10th meeting is occurred at 3:36 p.m. and the 31st meeting occurred at 5 p.m. So we have to find at what time they meet for the 23rd time. So M23rd निकालना आपको, राइट। देखो इसके पीछे का कंसेप्ट है कि सपोज वी हैव टू रनर्स A and B, they are running in opposite direction 3 meter per second and that of 5 meter per second. So number of meetings अगर मुझे निकालनी है तो this is the addition of 5 plus 3, that is 8, which is nothing but the speed ratio का addition. Speed ratio का addition है ये, that is 5/3, right? And similarly if they are running same direction like 3 meter per second and that of 5 meter per second, the number of meetings are the difference, that is 5 minus 3, 2. So this is one concept. And now if we want to find the position also, so we have to divide that track into 8 parts. So suppose we have divided the track into 8 equal parts. Now as per the speed ratio, B has to cover 3 parts, A has to cover 5 parts in the same time. So the B is running in the clockwise direction, so the B will be covering 3 parts, 1, 2, 3. So this is the first meeting. Then from that point onwards, first part, second part and third part, this is the second meeting. And similarly this is going to be 1, 2, 3 third meeting, then 1, 2, 3 fourth meeting, 1, 2, 3 fifth meeting, then sixth meeting, then seventh meeting, then eighth meeting, right? So this is the track of meetings, right? Now if I want to find the ninth meeting, so it is equivalent to the first meeting. If I want to find the 10th meeting, so it is equivalent to second meeting. So means if I say that is f m first is equals to m10 or m9, so number of meetings are 8 or factors of 8. So this is important, right? Now coming back to the question, we have 10th meeting at 3:36 and 31st meeting at 5 p.m, right? Means when they meet for the 10th time, the time is 3:36 p.m, and when they meet for the 31st time, the time is 5 p.m. So what is the gap here? तो गैप अगर हम मीटिंग की बात करते हैं तो 31 minus 10, that is 21. And if I talk in terms of time, so this is 5 p.m minus 3:36, it is that is 24, 60, 84 minute. So what I can conclude that एक मीटिंग को होने में 4 मिनट का गैप लगता है, 4 मिनट. Now
this is a 10th meeting, then 11th meeting, then 12th meeting. This is occurring at 3:36, then 3:40, then 3:44 and so on, right? Now we have to find the 23rd meeting. So अगर मुझे 23rd मीटिंग का टाइम निकालना है तो हम 10 को माइनस करेंगे, आपको 13 मीटिंग करना है, एंड फॉर एवरी मीटिंग वी हैव टू टेक 4 मिनट, तो टोटल टाइम विल बी 52 मिनट्स फ्रॉम 3:36. तो अगर हम 3:36 में 52 ऐड करेंगे तो आई विल बी रीचिंग टू 4:28 PM, which is the correct answer of the question. So this is the correct answer, that is 4:28. Now moving ahead to the next question. A man cheats while buying as well as selling. So there is an important concept of effect. So if I talk about effect, it is nothing but the return upon investment, whatever we are getting and whatever we are investing. So buy पर जो चीटिंग करते हैं, buy, so cheating is done on buying as well as selling in this question. So this is 10% and cheating on selling is 20%, and he sells at 9.09 below the CP. So there's a loss. So loss is 0.909, right? Now what is the percentage of 10%? 1/10. What is the 20%? 1/5, and that of 9.09 is 1/11. I hope it is clear, right? Now the thing is that when we are, or when the shopkeeper is buying the items, so we want to get 11 on the, we want to get the, on the investment of 10 I want to get the value of 11. चीटिंग करेंगे ना भाई, 10 का सामान लेना था, मुझे 11 का मिल जाए तो मेरा फायदा हो जाएगा चीटिंग करने में. सिमिलरली अगर हम सेल करते हैं तो मुझे 5 यूनिट सेल करने हैं ना, डिनोमिनेटर इज हैविंग 5, बट मुझे एक का चीटिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, पैसे तो 5 के लूँगा कस्टमर से, लेकिन सामान उसको 4 का देंगे, एंड दिस इज सिंपल लॉस. हाँ, तो ये तो क्लेम्ड लॉस है कि 11 पे 1 का नुकसान है, तो मुझे 10 मिल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ 11 पर. तो अपॉन सॉल्विंग विल बी गेटिंग 5/4 विच इज नथिंग बट 1 + 1/4. तो ये जो है ना 1/4, ये आपका प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है ना, इसका मिक्स फ्रैक्शन कर दिया, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 25%. I hope it is clear. Now moving ahead, the very interesting question we have, that we have to find the LCM of, we have to find the unit digit of the LCM, right? तो एक कंसेप्ट है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं A और B, उनका LCM और उनके SCF का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आएगा. ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. नाउ अगर मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ, आपके पास एक ऑड नंबर है, आप इसमें -1 करिए तो आपको मिलेगा even, अगर आप इसमें +1 करिए तो आपको मिलेगा अगेन even. आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 7 + 1 8 होता है, 7 - 1 6 होता है, और जब आप +1 और -1 करेंगे तो आपको ये जो दो नंबर मिलेंगे, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर मिलेंगे. आई होप इट इज क्लियर. तो आपके पास दुनिया में कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ले लीजिए, 8 और 10, तो अगर आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 ऑलवेज. द पॉइंट इज दैट कि एचसीएफ ऑफ 2 consecutive even numbers, 2x and 2x plus 2, it is always 2. This is very important result, right? You must remember it. Now coming back to the question, तो क्वेश्चन बोलता है 7 की पावर 3001, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑड नंबर. व्हाई सो? बिकॉज 7 की पावर एनी नेचुरल नंबर विल ऑलवेज रिजल्ट इन ऑड नंबर, राइट? आपके पास है 7 की पावर 3001. इफ आई ऐड +1 आई विल बी गेटिंग 3000. 7 की पावर 3000 +1, और अगर -1 करेंगे तो 7 की पावर 3001 -1. So this is going to be even number. This is also going to be even number because this is odd.
and these are consecutive also. The point is that कि अगर हम इनका SCF करेंगे बच्चों 7 की पावर 3000 माइनस 1 एंड 7 की पावर 3000 1 प्लस 1, तो ये बनेगा आपके पास इनका SCF 2 because these are consecutive evens. I hope it is clear, right? Now using the property of SCF and LCM, I don't know the LCM, but I have the SCF now 2. पहला नंबर है 3, 7 की पावर 3000 प्लस 1, दूसरा नंबर है 7 की पावर 3000 माइनस 1. So a plus b, a minus b, you should know this is nothing but a square minus b square. So this is 7 की पावर 6002 minus 1. Now divide by 2 equals to LCM. ये समझ में आता है. आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, राइट? इसको आपको यूनिट डिजिट निकालना है. We have to find the unit digit. तो how to find it? तो आपके पास कोई भी नंबर है ना, जैसे 7 की पावर 6002, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर को 4 से डिवाइड करो एंड रिप्लेस पावर बाय रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप 4 से रिप्लेस करो. हाँ, सिंपल 4 लिखो, सिंपल, ठीक है, रूल है. इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 7 की पावर 6002 को 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बनेगा मेरे पास 2, विच इज नथिंग बट 49. इसका मतलब जो इसका लास्ट 2 डिजिट या इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा 7 की पावर 6002 का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा 9. आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो इसका यूनिट डिजिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा था 9 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 8, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा 4. आई बिलीव इट इज क्लियर. सो अच्छा क्वेश्चन था एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. नाउ मूविंग अहेड, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है दैट अ प्लेग्राउंड इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन. गंदा सा हेक्सागन बना है ABCDEF. A flag हो पोस्ट स्टैंडिंग एट द पॉइंट A. यहाँ पर कुछ है, एक फ्लैग है इस तरह से, परपेंडिकुलर यहाँ पर. सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द पॉइंट C. तो ये कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसा. यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब ऐसा बन गया ये कुछ. ये यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री का. फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट टू द साइड ऑफ द हेक्सागन. बहुत ही बेकार सवाल हो गया. देखो आपके पास 30-60 ट्राइंगल का, अगर आपको ये नहीं पता, अगर 30 के सामने x है तो 60 के सामने दोस्तों x√3 होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल में बार बार काम आता है. द लॉजिक इज दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री एक्चुअली. तो अगर मैं इसको x बोलता हूँ तो ये x√3 हो जाएगा. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? तो ये जो पॉइंट है ये A है ना, ये, और ये AC है, तो ये तो डायगोनल बन गया. आप ये कहते हैं एक हेक्सागन की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास एक हेक्सागन है तो ये साइड अगर A है तो ये जो छोटा डायगोनल है A√3 होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो AC का वैल्यू आ गया x√3. तो ये तो सेम कहानी बन गई. तो हेक्सागन है, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री है ना, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री. तो ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. इसका मतलब x, ये भी x होगा, ये भी x होगा. तो साइड का वैल्यू तो x आ गया. और हाइट का जो कुछ एरर हो गया क्या? हाँ, कुछ एरर हो गया. एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते. देखो पंगा ये हो गया कि हमने गड़बड़ कर दिया. देखो ठीक है, ABC, यहाँ पर एक फ्लैग पोस्ट है, तो ये तो 90 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ऐसा बोलता है. ठीक है, तो 30 के सामने मैंने x ले लिया तो फ्लैग पोस्ट आपके पास x√3 आ जाएगा. तो फ्लैग की जो हाइट है वो x√3 आ गई. अब बची है आपको निकालनी है यहाँ पर हाइट ऑफ द हेक्सागन. तो ये जो लेंथ है तो डायगोनल बन गया,
ना, ये तो ये जो लेंथ आ गई ये एक्स आ गई। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास हेक्सागन है या फिर ये 120 डिग्री का एंगल और ये सारी साइड मतलब ये एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, तो सामने वाली साइड a√3 होती है। इसका मतलब ये वाली साइड x/√3 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा भाई। अगर ये a√3 है तो ये √3 से डिवाइड हो जाएंगी, तो साइड आगे a√3 x/√3, राइट। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट टू द साइड। तो हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट आ गया आपके पास x√3 और साइड आ गई x/√3। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर बनेगा 3√1 बनेगा, सॉरी 3:1, क्योंकि 3√3 ऊपर जाके 1। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट्स x y where x and y are the distinct integer are possible such that the product of x y is equal to product of 3 into 13 into 23 into 33। यहाँ पे एक चीज समझना है कि अगर मेरे पास एक नंबर है x इक्वल्स टू, कोई भी नंबर ले सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया 11 into 13, तो ये नंबर हो जाएगा 143, है ना। या फिर एक और नंबर ले लिया मैंने 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये नंबर हो गया 12, ठीक है। तो अगर हम इस 12 को देखते हैं तो 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 12, है ना। तो अगर मैं उसके प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट में लिखना है दो नंबर्स में, तो 1 into 12 या फिर 2 into 6 या फिर 3 into 4। लेकिन अगर आपके पास एक नंबर है 36 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इसके फैक्टर कितने होंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, 9 इन फैक्टर होंगे 3, ठीक है। तो इस अगर मुझे इसको प्रोडक्ट लिखना है तो 1 into 36, 2 के साथ 18 आएगा, 3 के साथ 12 आएगा, ऐसा 4 के साथ 9 आएगा और फिर 6 into 6 आएगा, राइट। तो ये आपको एडिशनल एक्स्ट्रा 6 लेके आना पड़ेगा। तो कितने पेयर बन पाएंगे, 1 2 3 4, तो डिस्टिंक्ट वाले तो 4 ही बनेंगे, 4 पेयर, है ना। और अगर टोटल पेयर देखेंगे तो वो 5 बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये जो नंबर है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो नॉन परफेक्ट में तो 1 2 3 यहाँ पे बन गए। मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ उस पर बात करते हैं। ये तो कंसेप्ट था। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे इनका प्रोडक्ट आपको करना है, तो 33 को तो आई कैन राइट 3 into 11, तो सिर्फ 3 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 23 इंटू 13 इंटू 23, राइट। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो। फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो पावर है ना उसमें +1 करना है, जितने भी आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। तो ये बनेगा 3 इंटू 8 24, तो 24 फैक्टर्स है। अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता था, देखो जैसे आपके पास कितने फैक्टर्स हैं इसके, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो है आगे 6, ठीक है। तो अगर मुझे डिस्टिंक्ट पेयर निकालने हैं तो 6 को 2 से डिवाइड करना है 3। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में तो सेम आंसर आएगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखने हैं तो ये बनेंगे दोस्तों आपके पास, फैक्टर देखने हैं तो ये बनेंगे 9। अब 9 में अगर आपको डिस्टिंक्ट पेयर निकालने हैं तो या तो ये 9 + 1/2 आएगा, दैट इज 5, 1 2 3 4 5, और दोस्तों ये आएगा यहाँ पर डिस्टिंक्ट पेयर 9 - 1/2, दैट इज 4। तो कौन सा ठीक है, जो ठीक वाला है वो ये है, ये वाला, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, यहाँ पे जो पेयर है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर आपको सेम टू सेम नंबर्स का मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई, राइट।
इसका मतलब क्या है कि जो नंबर से तो नॉन परफेक्ट है ना भाई, यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नंबर पावर तो नहीं है ना, इसकी तो ऑड पावर है, तो ये नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मुझे डिस्टिंक्ट पेयर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 24 को 2 से डिवाइड करना 12, जो कि इसका राइट आंसर, मतलब आप इसको 12 डिस्टिंक्ट पेयर्स में x इंटू वाई में लिख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।